If we illuminate this toothpick with fine beam of laser, we expect a fine dark shadow at the screen behind this toothpick. But see what we get? Bending of light at the edges of the toothpick, and the light enters in the geometrical region of the shadow. This is diffraction of wave. Similarly, we take another example, a very fine slit between the two blades, and illuminate it with fine beam of red laser. We expect a bright line at the screen, white screen behind this slit. But see what we are getting? A bright and dark fringe pattern instead of one bright line of light. The center maxima is white, and at the two sides we are having alternate bright and dark fringes with decreasing intensity as well as thickness. Now let us start understanding diffraction phenomena. We have just seen the case of toothpick and a slit between the two blades. What we have seen? When a wave is obstructed by an obstacle, rays bend at the edges of the obstacle. We have seen when ray passes through the slit between the two blades, it actually bends at the edges of the slit and it enters in the shadow region. It gives us a diffraction pattern instead of giving a bright line of red light. So when a wave is obstructed by an obstacle, the rays bend at the edges of the obstacle, and this phenomena is called diffraction. But this phenomena is observed when dimension of obstacle is of the order of wavelength of the wave. So sound wave has a large wavelength in comparison to the wavelength of light. That is why diffraction of sound wave is easily observed, but diffraction of light is not easily observed. Wavelength of light is of the Armstrong order. So the obstacle must be of the order of the small limit. Then only you will be able to see the diffraction effect in light. But in sound, we easily observe that if a person is speaking in some other room, the sound wave, after getting bent from the window or from the door, reaches to the listener. Although the speaker is not in the same room, but we are able to hear the sound being produced in some other room. So that is because of the diffraction effect. But in the light, if the obstacle is of the order of the light wavelength of the light wave, then only you will see that instead of giving the exposed screen according to the rectilinear propagation of light, we are having the bending of light at the edges of the obstacle. Instead of getting the sharp shadow behind the obstacle, we are seeing that light enters in the geometrical shadow region after getting after bending from the edges of the obstacle. So there is a question which is frequently asked, why we see the diffraction pattern, why we see easily diffraction phenomena in sound and the diffraction phenomena in light is not easily observed. So reason behind it will be, you will write that because the wavelength of light is in Armstrong, so very small aperture or obstacle is needed to observe diffraction of light wave, while dimension of door and windows are of the order of wavelength of sound. Therefore,
diffraction of sound wave is easily observed. Now move to the diffraction of light wave. So one definition of diffraction phenomena is bending of light at the edges of the obstacle, right? But there is an important question, that if in the Young's double slit experiment we close one of the slit, then what will be effect on interference pattern? And the answer is that we will see diffraction pattern on the screen. This is important question also, and this is base of the understanding of the diffraction also. Why? See, when light wave originating from slit S1 and S2 interfere at the screen in Young's double slit experiment, then we have a pattern in which the bright light, because we use monochromatic light in Young's double slit experiment to observe interference. So take the example of red light, we are using red light, then we are having red fringes at the place of maximum intensity and dark fringes at the place of minimum intensity. But what is being observed, that the thickness and intensity of the fringes is almost uniform in the interference pattern. And then you close one of the slits S1, S2. Then see which type of pattern we observe on the screen. As I said that you have to remember this answer, that if one of the slit of Young's double slit experiment is closed, we get diffraction pattern. And if the question is that is diffraction phenomena taking place in Young's double slit experiment always, then we will say yes, diffraction phenomena takes place in Young's double slit experiment always. But if both the slits are open, then interference pattern is, or interference phenomena is dominating over diffraction phenomena, or interference pattern is superimposed over the diffraction pattern. That will be answer of the question that whether diffraction phenomena is taking place in Young's double slit experiment always or not. Yes, it is taking always. This phenomena is taking place always. But if one of the slit is closed, then we clearly see the diffraction pattern on the screen in which the central maxima is wide enough. Just compare the two patterns. Central maxima is wide enough and the bright fringes on the two sides, maxima on the two sides, are decreasing in thickness as well as in intensity also. So just look at the two patterns. This is interference pattern when both the slits are open. This is diffraction pattern when only one slit is open. And just I want to hint you, you can take this white maxima in the diffraction pattern as if the redistribution of light in this region takes place when both the slits are open. Just observe it. Redistribution of this light energy takes place and gives this bright and dark fringes of equal width and intensity when both the slits are open. But that is the interference pattern superimposed over the diffraction pattern. Let us move to the point what happens when light wave incidence on single slit which is opened. One slit is closed, only one slit is opened. How Huygens theory explains the diffraction phenomena? It says that if wave front, say plane wave front, incidence on the single slit opened, then the part which is not exposed, that part is absorbed by the material, but the part which is exposed, that part's every point, wavefront of the exposed part, every point of that unobstructed wavefront acts as the source of the secondary wavelets. Secondary waves are produced
प्रोड्यूस्ड। और हाइगन्स थ्योरी ही कहती है कि अगर हमको नया एनवेलप पता करना है किसी टाइम टी पर, तो हम सेकेंडरी वेव्स का उस टाइम टी पर एक एनवेलप ड्रॉ कर दें। तो अगर आप टी टाइम पर एनवेलप ड्रॉ करो सेकेंडरी वेव्स का, यू कैन इजिली सी दैट लाइट इज बेंडिंग एट द एजेस। ये वेव फ्रंट यही बता रहा है, देखो। So instead of passing through the opening straight, the exposed part of the wavefront, instead of passing straight, it actually bends because of these secondary wavelets. तो ये वजह है या ये हो रहा है जब लाइट एक सिंगल स्लिट के ओपनिंग पर इंसिडेंट होती है तो डिफ्रैक्शन कैसे होता है। ये एक्सप्लेनेशन हमको इस सेकेंडरी वेव्स की थ्योरी से मिलता है। और अब हम मूव करते हैं मेन डिस्कशन ऑफ डिफ्रैक्शन पर। We got this information that bending of light at the edge of the obstacle is diffraction. तो यानी एक सोर्स हुआ लाइट का, एक ऑब्स्टेकल होना चाहिए और एक स्क्रीन होनी चाहिए जिससे हम उस डिफ्रैक्शन इफेक्ट को देख सकें। तो अगर आप इन तीनों को कंसीडर करो तो दो तरह के डिफ्रैक्शन होते हैं, एक फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन एंड सेकेंड इज फ्रेस्नेल्स डिफ्रैक्शन। व्हाट इज फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन? व्हेन सोर्स and screen both are effectively at infinite distance from the obstacle. effectively, तो जो डिफ्रैक्शन फिनोमेना होता है उसको हम बोलते हैं फ्रॉनहोफर्स डिफ्रैक्शन। लेकिन अगर सोर्स स्क्रीन दोनों या कोई एक ऑब्स्टेकल से फाइनाइट डिस्टेंस पर है, तब जो डिफ्रैक्शन फिनोमेना हमको मिलता है that is called Fresnel's diffraction. Fraunhofer's diffraction is in our syllabus, so we will study that diffraction only in detail, but difference mainly ये है। तो अब Fraunhofer's diffraction कैसे हम observe करते हैं? See the experimental arrangement of Fraunhofer's diffraction. Source is at the focus of a convex lens. इससे रेज जब पास होती हैं तो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो गई। नाउ प्लेन वेव फ्रंट इंसिडेंस एट द ओपनिंग ऑफ द स्लिट। नाउ दिस इज समथिंग विच यू हैव टू नोट डाउन। द क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ वेव फ्रंट इंसिडेंस एट द सिंगल स्लिट ओपनिंग, एंड योर आंसर विल बी प्लेन वेव फ्रंट इंसिडेंस एट द सिंगल स्लिट ओपनिंग इन फ्रॉनहोफर्स डिफ्रैक्शन। क्योंकि इफेक्टिवली जो सोर्स है और जो स्क्रीन है वो ऑब्स्टेकल से कितनी दूर है, इनफाइनाइट डिस्टेंस पर, तो ऑब्वियसली प्लेन वेव फ्रंट इंसिडेंट होगा। अब प्लेन वेव फ्रंट इंसिडेंट हुआ और उसके बाद उसके डिफरेंट पार्ट से सेकेंडरी वेवलेट्स निकली, वो इंटरफेयर करती हैं स्क्रीन पर, तो उनको स्क्रीन पर सुपर इम्पोज कराने के लिए ये जो प्लेन वेव्स थी इनको हमने फिर से एक लेंस के थ्रू स्क्रीन पे फोकस किया। तो स्क्रीन इज एट द फोकल पॉइंट ऑफ द लेंस। तो वी आर यूजिंग टू लेंसेज इन फ्रॉनहोफर्स डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट। अब हम लोग इस पूरे अरेंजमेंट से दो पॉइंट्स निकालते हैं कि जो रेज है वो यहाँ से पैरेलल निकलती हैं और फिर स्क्रीन पर मिलती है। तो हम अब इन दोनों पॉइंट्स को इस एक्सपेरिमेंटल सेटअप को सिंप्लीफाई करेंगे और हम अब उसको सिंप्लीफाई करके इस तरह से कुछ देखेंगे। पर हम मेन डिस्कशन पर जाएं उससे पहले आप इस पॉइंट को नोट करेंगे दैट इन फ्रॉनहोफर्स सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट प्लेन वेव फ्रंट इंसिडेंस ऑन द स्लिट, राइट। तो अब देखो हमने उस एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट से अपने डिस्कशन के लिए सिंप्लीफाइड जो डायग्राम है वो बना लिया। ये अनऑब्स्ट्रक्टेड पार्ट ऑफ द वेव फ्रंट है और इस वेव फ्रंट के डिफरेंट पॉइंट्स से जो वेव निकलेंगी वो सेंटर पर इक्वल पाथ ट्रेवल करके पहुंचेंगी। तो कोई पाथ डिफरेंस उनके बीच नहीं होगा, तो फेज डिफरेंस नहीं होगा। फेज डिफरेंस नहीं होगा तो यहाँ पर वो कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करेंगी और हमको एक ब्राइट पैटर्न मिलेगा यहाँ पर, ठीक। ब्राइट मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ द
light will be obtained here, which we call it central maxima of diffraction pattern. पर आप इस सेंटर पॉइंट से स्क्रीन के एक साइड में चलना शुरू करो तो यू कैन इजीली ऑब्जर्व कि जो वेव्स यहाँ पर इक्वल पाथ ट्रेवल करके पहुंचती, वो वेव्स अब डिफरेंट पाथ ट्रेवल करके स्क्रीन के पॉइंट्स पर और पॉइंट्स पर डिफरेंट पाथ ट्रेवल करके पहुंचेंगी। तो जिस पॉइंट पर इन दोनों वेव्स के बीच में, एक ये वेव और एक ये वेव, इन दोनों वेव्स के बीच में जिस पॉइंट पर पाथ डिफरेंस λ/2 हो जाएगा, वहां पर ये दोनों वेव्स डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करेंगी और वहां पर हमको जो इंटेंसिटी है वो मिनिमम मिलेगी। यानी जिन पॉइंट्स पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा था, सारी वेव्स या कुछ वेव्स, यहाँ से बहुत सारी सेकेंडरी वेवलेट्स स्क्रीन पे पहुंच रही हैं, तो सारी वेव्स या कुछ वेव्स स्क्रीन पर कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर कर रही हैं, तो हमको वहां पर मैक्सिमा मिल रहा है। जिस पॉइंट पर सारी वेव्स डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करेंगी, वहां पर हमको पहला मिनिमा मिलेगा सेंट्रल मैक्सिमा के साइड में, इस साइड में भी और इस साइड में भी। कब मिलेगा फर्स्ट मैक्सिमा? जब सारी वेव्स इस पॉइंट पर λ/2 पाथ डिफरेंस के पाथ के साथ इस पॉइंट पर इंटरफेयर करेंगी। तो λ/2 का पाथ डिफरेंस हो और यहाँ पर सारी वेव्स डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करें, उससे पहले दो कंडीशंस जो इंटरफेरेंस के समय भी ट्रू थी और इस डिस्कशन के समय भी ट्रू होंगी, उनमें पहला जो कंडीशन है वो ये कि ये एंगल बहुत छोटा होना चाहिए और दूसरा ये एंगल बहुत छोटा होना चाहिए। और ये दोनों ही पॉइंट्स ट्रू हैं। कैसे? जब हम इस एक्सपेरिमेंटल सेटअप को बनाते हैं तो हम ये इंश्योर करते हैं कि स्लिट की विड्थ इस डिस्टेंस से बहुत छोटी हो। अब अगर ये डिस्टेंस बहुत छोटा है और ये डिस्टेंस काफी बड़ा है, यू कैन इजीली ऑब्जर्व कि ये जो एंगल है ये बहुत छोटा होगा। एंड यू कैन इजीली ऑब्जर्व दिस फैक्ट। इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने का फायदा हमको क्या मिलता है मैथमेटिकली, कि अगर ये बहुत छोटा है, ये बहुत बड़ा है, ये एंगल बहुत छोटा है, तो ये एंगल बहुत बहुत छोटा होने का मतलब दिस एंगल इज टेंडिंग टू 0। और ये एंगल अगर 0 हो रहा है, इसका मतलब ये हो गया कि ये जो रे है, ये जो रे है और ये जो रे है, ये तीनों जो टॉप ऑफ द स्लिट से चल रही है, जो बॉटम ऑफ द स्लिट से चल रही है और जो मिड पॉइंट से चल रही है, वो तीनों रेज वी कैन टेक देम पैरेलल टू ईच अदर। क्योंकि पैरेलल रेज का मतलब उनके बीच का एंगल 0 होना, और ये एंगल बहुत छोटा है, मतलब दिस एंगल इज टेंडिंग टू बी 0। और इससे हम जो अप्रोक्सीमेशन लेते हैं ये कि ये पैरेलल है, उससे हमें एक फायदा ये होता है कि जब हम इस पॉइंट से इस पर या इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं, तो हमको ये जो डिस्टेंस मिलता है, ये डिस्टेंस इन दोनों के बीच का पाथ डिफरेंस देता है। तो ये जो पाथ डिफरेंस है, इसको हम λ/2 के इक्वल करके ये पता कर सकते हैं कि वो कौन सी कंडीशन है, कौन सा थीटा है जिस पर ये रेज यहाँ पर डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करके एक दूसरे की एनर्जी को कैंसिल कर रही हैं और यहाँ पे हमें मिनिमम इंटेंसिटी ऑफ लाइट मिल रहा है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि हमको ये जो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज थी, इसके बाद पहला मिनिमा पता करना था कि कहाँ होगा, और उसी के बेसिस पर हम इस सेंट्रल मैक्सिमा की विड्थ भी निकालते। तो हम क्या करते हैं कि हम इस स्क्रीन को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। मैथमेटिकल लॉजिक समझना, स्क्रीन की ओपनिंग को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। ठीक, अब हमने एक वेव कंसीडर की जो टॉप से निकल रही है, यानी फर्स्ट हाफ के
टॉप से, और दूसरी वेव हमने सेंटर से जो ओरिजिनेट हो रही है, यानी सेकंड हाफ के टॉप से। ध्यान से समझना, एक वेव फर्स्ट हाफ के टॉप से और दूसरी सेकंड हाफ के टॉप से निकल रही है। इन दोनों वेव्स को हम यहाँ P पर सुपर इम्पोज करता कंसीडर कर रहे हैं। हमने इन दोनों के बीच के एंगल को यहाँ पे जो बहुत छोटा लिया, उससे हमने इन दोनों वेव्स को या रेज को पैरेलल माना, और इससे इस लंबी पाथ ट्रेवल करके पहुंच रही वेव पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया। तो हमें ये पता चल जाएगा कि ये जो दूसरी वेव है ये कितना ज़्यादा पाथ ट्रेवल करके यहाँ तक पहुंच रही है, और वो पाथ डिफरेंस जो है वो ये लेंथ हो जाएगी ON। तो अब ON कैसे पता करेंगे? ये जो एंगल थीटा है, इस जगह पर आप ज्योमेट्री की हेल्प लो। ये एंगल थीटा है, तो ये जो एंगल है यहाँ पर, ये एंगल 90 माइनस थीटा होगा, लेकिन ये एंगल 90 है, तो ये 90 माइनस थीटा, ये 90, तो ये एंगल ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? ये छोटा सा थीटा। तो इस ब्लू शेडेड ट्राइंगल में अगर ये थीटा है, इस ओपनिंग को हम लेते हैं A, तो ये हाफ पार्ट हो जाएगा A/2 लेंथ का। तो ये A/2, ये थीटा, तो ये जो लेंथ है ये हो जाएगी A/2 साइन थीटा। A/2 साइन थीटा विल बी पाथ डिफरेंस। तो अब हम कंडीशन पर, मिनिमा की कंडीशन पर पहुंचे, उससे पहले इन पॉइंट्स को नोट करना जरूरी है। ये क्या है? ये है नेसेसरी कंडीशन for this discussion to hold good, that the opening of the slit or slit width is much smaller than distance between the slit and the screen. As a result, the angle between the waves reaching there is so small that we can take it to be tending to be 0, and therefore these three rays which we are considering here can be taken to be parallel. So note this down, because sometimes the question is being asked, what is condition which should be satisfied for this whole discussion to hold good. और अब हम लोग आ जाते हैं अपने डिस्कशन पर कि हमने पता किया कि जो AP है और OP रे है, इनके बीच पाथ डिफरेंस है A/2 साइन थीटा, और अगर ये A/2 साइन थीटा λ/2 के बराबर हो तो AP और OP रेज डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करेंगी यहाँ पर। तो पहले सिर्फ इन दो रेज के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि ये डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। डेरिवेशन क्या? डेराइव कंडीशन फॉर nth मिनिमा इन डिफ्रैक्शन पैटर्न। derive condition for nth minima in diffraction pattern। तो हम देखो पहले फर्स्ट मिनिमा की बात कर रहे हैं। सेंट्रल मैक्सिमा के बाद जो पहली मिनिमम इंटेंसिटी वाला पॉइंट मिलता है वो कहाँ मिलेगा? तो कंडीशन फॉर फर्स्ट मिनिमा क्या हुई कि जो स्लिट थी उसको हमने दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड किया, और फर्स्ट हाफ के टॉप पॉइंट से और सेकंड हाफ के टॉप पॉइंट से दो रेस को कंसीडर किया। वो दोनों रेस पहुंचती हैं स्क्रीन पर, इंटरफेयर करती हैं, और A/2 साइन थीटा विच इज द पाथ डिफरेंस शुड बी λ/2 इसे सेटिस्फाई कर रही हैं और मिनिमम एनर्जी कंडीशन प्रोड्यूस कर रही है वहां। by2 साइन थीटा इज इक्वल टू λ/2, 2 कैंसिल हो गया, A साइन थीटा इज इक्वल टू लेमडा। और क्योंकि हम फर्स्ट मिनिमा की बात कर रहे हैं तो वो एंगल जिस पर मूव करने के बाद जो पहली वेव और दूसरी वेव थी वो λ/2 पर मिल रही है। λ/2 पाथ डिफरेंस ट्रेवल करने के बाद मिल रही है P पॉइंट पर, तो हमने इस एंगल को भी θ1 नाम दे दिया। ठीक है, तो A साइन θ1 इज इक्वल टू लेमडा, ये पहले मिनिमा की कंडीशन हो गई। तो अब
तुम्हें ये क्वेश्चन आ सकता है दिमाग में कि भाई एक दो ही रेस की तो बात की हमने, तो हमने सारे रेस के लिए कैसे ये कंडीशन सेटिस्फाई करा दी। तो देखो, इस हाफ की फर्स्ट रे और इस हाफ की फर्स्ट रे यहाँ पर डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर कर रही हैं। अब सोचो, इस हाफ के हर वेव के लिए सेकंड हाफ में एक वेव है जो इस थीटा वन एंगल पर जब बी पर पहुंच रही है तो डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करके एक दूसरे को कैंसिल कर रही है। तो इस लॉजिक से हमने कहा कि ये सारी रेज इस पर्टिकुलर एंगल पर लेमडा बाई 2 का पाथ डिफरेंस ट्रैवल करके इन रेज के साथ इंटरफेयर कर रही हैं, सेकेंड हाफ की सारी रेस के साथ, और एक दूसरे को डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करके कैंसिल कर रही है। और पी पर हमको एक कंप्लीट मिनिमा मिल रहा है जिसको हम नाम देंगे फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा। तो इसलिए हमने कहा कि ये जो कंडीशन ए साइन थीटा वन इज इक्वल टू लेमडा है, ये इस पॉइंट पर सभी रेस के लिए मिनिमा की कंडीशन है। और कैसे किया? स्लिट को दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड करके एक रे यहाँ से ली, एक रे यहाँ से ली, और डिस्कशन या लॉजिक को इम्प्लीमेंट किया। अब हम सेकेंड सेकेंडरी मिनिमा की कंडीशन को भी देख लेते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे? सो कंडीशन फॉर सेकेंड सेकेंडरी मिनिमा, अब स्लिट को हम 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, ठीक। और 4 इक्वल पार्ट में पहले दोनों पार्ट से एक यहाँ से वेव ली और एक यहाँ से वेव ली। अब ये जो एंगल है, ये हम सेंटर से चल रहे थे, थीटा वन पोजीशन पर हमको फर्स्ट मिनिमा मिल गया, फिर हम और ऊपर जा रहे हैं तो हम थीटा टू पोजीशन पर और इस सेंट्रल मैक्सिमा के इस साइड में थीटा टू पोजीशन पर पहुँचे। तो हमने स्लिट को 4 पार्ट्स में डिवाइड करके अपनी एनालिसिस की और हमने देखा कि जो ये 1/4 पार्ट है इसके टॉप से, और सेकंड जो 1/4 पार्ट है उसके टॉप से जो दो वेव्स चल रही हैं वो पी पर तब डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करेंगी अगर इन दोनों के बीच ये जो पाथ डिफरेंस है ये लेमडा बाई 2 हो। तो अगर इन दोनों के बीच जो पाथ डिफरेंस है वो लेमडा बाई 2 हो तो ये अप्लाई कर दी हमने कंडीशन। और हमने अप्लाई करके कहा कि अगर ये एंगल थीटा 2 है, उसी लॉजिक से जैसे हमने पिछली बार इस एंगल में थीटा 1 इंट्रोड्यूस किया था कि ये थीटा 2 है, तो ये 90 माइनस थीटा 2 और ये 90 डिग्री, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है इस ए पी वन से इस एक्स पी वन पर। तो ये जो साइड है ये 90, ये 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा। तो ये जो साइड है ये हो जाएगी दिस डिस्टेंस विच इज सी ए 4 पार्ट इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है, तो अब ये पार्ट a बाई 4 हो गया। तो a बाई 4 साइन थीटा 2 इज दिस लेंथ विच विल गिव अस पाथ डिफरेंस बिटवीन दीज टू वेव्स। और अगर ये इन दोनों वेव्स के बीच का पाथ डिफरेंस लेमडा बाई 2 है तो ये दोनों एक दूसरे को यहाँ पर पहुँचने पर थीटा 2 एंगल पर कैंसिल कर देंगी। लेकिन सेम लॉजिक तो इन दोनों के लिए भी लगेगा, इस 1/4 पार्ट और इस 1/4 पार्ट से, कि ये और ये दोनों वेव्स जो इस 1/4 पार्ट के टॉप से है और जो इस 1/4 पार्ट के टॉप से है, ये दोनों वेव भी यहाँ पहुँचकर एक दूसरे को डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करेंगी, क्योंकि ये जो डिफरेंस है पाथ का वो भी a बाई 4 साइन थीटा 2 इक्वल टू लेमडा बाई 2 होगा, क्योंकि ये एंगल इतना छोटा है कि ये एक्चुअली तो सब पैरेलल हैं। तो जो ये दोनों वेव्स कंडीशन सेटिस्फाई कर रही हैं वही ये दोनों वेव्स भी कंडीशन सेटिस्फाई करेंगी। तो फिर से हम वही लॉजिक लगाएंगे कि इस 1/4 पार्ट की हर वेव इस 1/4 पार्ट की हर वेव से
की एक वेव से कैंसिल हो रही है, क्योंकि इनके बीच का जो पाथ डिफरेंस है वो इस पर्टिकुलर एंगल पर λ/2 हो रहा है। और सिमिलरली इस 1/4 पार्ट की हर वेव इस 1/4 पार्ट की एक वेव से कैंसिल हो रही है, डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर कर रही है, क्योंकि इनके बीच भी पाथ डिफरेंस इस पर्टिकुलर एंगल पर λ/2 हो रहा है। तो अब हमने कंडीशन रखी फॉर सेकंड सेकेंडरी मिनिमा दैट path difference a/4 sin theta 2 must be equal to λ/2, right? a/4 sin theta 2 must be equal to λ/2. तो 4 और 2 आप कैंसिल करोगे तो a sin theta 2 will be equal to 2 λ. तो सेकेंड सेकेंडरी मैक्सिमा के लिए कंडीशन क्या आई कि a sin theta 2 पर्टिकुलर एंगल फॉर सेकेंड मिनिमा इज 2 λ, सेकेंड मिनिमा सो 2 λ. तो इस प्रोसेस को अगर हम आगे बढ़ा के 2-3 केसेस और ले और फिर जनरलाइज करें तो हम कह सकते हैं दैट फॉर nth सेकेंडरी मिनिमा a sin theta n is that angle, that direction at which the rays will destructively interfere on the screen, it should be equal to n lambda. तो ये हो गई nth सेकेंडरी मिनिमा की कंडीशन. तो ये क्योंकि बहुत इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन है तो ऑब्वियसली आपको इसको कैसे रिप्रेजेंट करना है वो देखना पड़ेगा. तो हम पूरे आंसर को ध्यान से देखेंगे और जो दोनों डायग्राम मस्ट है वो भी देखेंगे. जस्ट ऑब्जर्व द कंडीशन, डायग्राम, द लैंग्वेज विच यू आर सपोज टू राइट, क्योंकि ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है. कौन सी कंडीशन पर ये सारा डिस्कशन हमारा होल्ड करता है, ये कंडीशंस. और उसके बाद इस डायग्राम के बाद हम फर्स्ट मिनिमा की कंडीशन को इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे. एंड देन वी विल ड्रॉ द सेकेंड डायग्राम and we will show how second minima's condition is being derived. This is the diagram. थीटा 2 एंगल पर मिलते हुए दिखाएंगे. 4 पार्ट्स में स्क्रीन को डिवाइड कर देंगे, स्लिट को, और फिर हम सेकेंड मिनिमा की कंडीशन डिराइव करके जनरलाइज कर देंगे. That a sin theta n is equal to n lambda is condition for nth minima. और एक और इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन हमको मिलेगी डिफ्रैक्शन की दूसरी डेफिनेशन. इफ द क्वेश्चन इज व्हाट इज डिफ्रैक्शन, देन वी विल से डिफ्रैक्शन इज इंटरफेरेंस ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम पार्शियली ऑब्स्ट्रक्टेड वेव फ्रंट. सो दिस इज डिस्कशन एंड डेरिवेशन ऑफ nth सेकेंडरी मिनिमा. लेकिन अब यहाँ पर 2 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं. एक तो ये कि ये डिस्कशन तब होल्ड करता है जब एंगल जिस पर ये वेव्स मिल रही हैं वो बहुत छोटा हो, और साथ में हम बार बार कहते हैं कि ये एंगल इंटरफेरेंस में भी बोल रहे हैं और डिफ्रैक्शन में भी कि ये थीटा एंगल भी बहुत छोटा होना चाहिए. ये थीटा एंगल छोटा है. कैसे छोटा है देखो. पावर ऑफ. आप यहाँ पर इस कंडीशन पर आ जाओ. a sin थीटा इज इक्वल टू लेमडा. तो इससे हमको पता चलता है कि sin थीटा इज इक्वल टू लेमडा बाई a. अब लेमडा किस ऑर्डर का है, एमस्ट्रॉन्ग के ऑर्डर का. लाइट की वेव एमस्ट्रॉन्ग के ऑर्डर की है, 4000 से 8000 एमस्ट्रॉन्ग. और जो विथ स्लिट की विथ है वो मिलीमीटर में होगी, कुछ पार्ट ऑफ मिलीमीटर होगी, लेकिन मिलीमीटर में होगी. तो आप देख सकते हो कि लेमडा बाई ए इज वेरी वेरी स्मॉल एंड देयरफॉर
this sin theta and hence theta is automatically very small. तो दोनों कंडीशन हमारी होल्ड कर रही हैं. अगर हमने स्लिट को बहुत फाइन लिया है, नैरो लिया है, तो लेमडा बाई ए, क्योंकि लेमडा तो ऑलरेडी बहुत बहुत छोटा है, तो लेमडा बाई ए इतना छोटा है कि थीटा भी बहुत छोटा होगा. तो इस तरीके से जो दोनों कंडीशन हैं, जिस एंगल पर दोनों वेव्स स्क्रीन पर मिल रही हैं वो एंगल भी बहुत छोटा है, और जिस एंगल पर ये हॉरिजॉन्टल से या डी डिस्टेंस जिससे हम कह रहे हैं उससे जिस एंगल पर ये वेव्स को हम मूव करता मान रहे हैं वो एंगल भी बहुत छोटा है. तो यहाँ पर हम ये दूसरी कंडीशन इस तरीके से मेंशन कर सकते हैं कि सिंस लेमडा इज मच स्मॉलर देन ए, देयरफॉर दिस थीटा इज वेरी स्मॉल. ठीक, अब अगले डिस्कशन पर चलते हैं. If question is asking you width of central maxima, width of central maxima is important for numericals also. Then we just have to find the first minima condition. First minima condition क्या आई थी कि a sin theta 1, we should write it here, a sin theta 1 is equal to lambda. यही तो आई थी हमारी फर्स्ट मिनिमा की कंडीशन. यहाँ से हम थीटा 1 की वैल्यू निकाल लेंगे, और थीटा 1 की वैल्यू निकाल लेंगे तो देखो ये सेंट्रल मैक्सिमा कितने हिस्से में फैला होगा, 2 थीटा एंगल में. तो 2 थीटा विल बी विथ एंगुलर विथ ऑफ दिस सेंट्रल मैक्सिमा. तो एंगुलर विथ पहले निकाल लेते हैं, दैट a sin theta 1 is equal to lambda, therefore sin theta 1 is equal to lambda by a. So theta 1 or sin theta 1 for very small angle, sin theta 1 is equal to theta 1 is equal to lambda by a. Therefore angular width will be 2 theta and that will be 2 lambda by a. तो angular width of central maxima हो जाएगा 2 lambda by a, और ये हमें बहुत अच्छे से याद होना चाहिए for numericals and for reasoning questions. Right? And theta is very small because lambda is very small in comparison to the width of the slit. अब अगर हमको एंगुलर पोजीशन की जगह डिस्टेंस के टर्म्स में सेंट्रल मैक्सिमा की विड्थ पता करनी हो, तो देखो हम सेंटर से स्क्रीन के या स्लिट के सेंटर पॉइंट से इस फर्स्ट मिनिमा की डिस्टेंस को y0 ले लेते हैं, और ये जो डिस्टेंस है ये d है. अब हमें पता है कि थीटा बहुत छोटा है क्योंकि स्लिट की ओपनिंग स्लिट की ओपनिंग के कंपैरिजन में लेम्डा बहुत छोटा है. तो फॉर वेरी स्मॉल एंगल साइन थीटा इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू थीटा इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू टेन थीटा, और टेन थीटा क्या हो जाएगा y/d. तो अब हम अपनी कंडीशन पर फर्स्ट मिनिमा की वापस आते हैं. हमने कंडीशन ली थी a साइन थीटा इज इक्वल टू लेम्डा. ठीक, अब साइन थीटा इक्वल टू लेम्डा बाई ए, लेकिन थीटा बहुत छोटा है तो साइन थीटा को रिप्लेस कर दिया टेन थीटा से. तो साइन थीटा इज रिप्लेस्ड बाई टेन थीटा, और अभी हमने देखा कि टेन थीटा इज इक्वल टू y/D. लेकिन साइन थीटा इक्वल टू टेन थीटा इज इक्वल टू लेम्डा बाई ए ऑल्सो. सो वी कैन इक्वेट लेम्डा बाई ए, which is the one value of theta, with y/D, which is the other value of theta. So we will write here that y is equal to d tan theta, and in place of tan theta substitute the value lambda by a. So in terms of distance, the width of central maxima is 2d lambda by a. ठीक, तो अगर एंगुलर पोजीशन विड्थ पूछी जो कि ज़्यादा पूछी जाती है तो 2 लेम्डा बाई ए, और अगर डिस्टेंस पूछी तो 2d लेम्डा बाई ए. राइट, एक कैपिटल डी यहाँ पर और इंट्रोड्यूस हो जाएगा. सो जस्ट ऑब्जर्व द प्रोसेस. इसमें हमें डिस्कशन में केवल फर्स्ट मिनिमा की कंडीशन को डिस्कस करके लिखना है, और फिर
एंगुलर विड्थ पर पहुंच जाना है। कब? अगर एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा डिराइव करने को आए तो हमको सेकंड मिनिमा की कंडीशन और फिर nth मिनिमा की कंडीशन तक पहुंचने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ज़्यादा पूछा जाता है nth मिनिमा की कंडीशन डिराइव करो। तो वो डेरिवेशन अच्छी तरह से समझकर 3 to 4 टाइम्स आपको लिख कर खुद को एक्सप्लेन करना होगा। देन ओनली यू विल बी एबल टू लर्न अ डेरिवेशन प्रॉपरली एंड यू विल write it correctly in your examination copy. So always don't escape from writing the derivations, formula and solving numericals by writing it. Don't escape writing practice. अब हम डिफ्रैक्शन के लास्ट टॉपिक पर आ जाते हैं एंड विच इज द इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। तो डिफ्रैक्शन में इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन हमने देखा कि सारा का सारा लाइट एनर्जी सेंट्रल मैक्सिमा में कॉन्सेंट्रेटेड रहता है। उसके बाद के जो मैक्सिमा है वो बहुत वीक होते हैं, विड्थ में भी बहुत वीक होते, पतले होते हैं, और जो एनर्जी है वो भी बहुत कम होती है उनमें। तो जब अभी हमने डिस्कशन किया था तो हमने पता किया था कि ये जो पोजीशन है ये क्या आई थी, याद है? साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू लेमडा बाई ए। तो ये जो पोजीशन थी, एंगुलर पोजीशन, वो थी लेमडा बाई ए, और अगर आप ये डिस्टेंस नापते तो वो हो जाता डी लेमडा बाई ए, ठीक है ना? तो अब मैक्सिमा सेंटर वाला इन दोनों मिनिमा की पोजीशन को अपने ग्राफ में मेंशन करके हम सेंट्रल मैक्सिमा के सेंटर को 0, इसे लेमडा बाई ए, और इसे अगर इसे प्लस लेमडा बाई ए तो इसे माइनस लेमडा बाई ए। उसके बाद का जो कंडीशन आया था वो क्या आया था? दूसरा मिनिमा हमको कहाँ मिल रहा था? दूसरा मिनिमा की कंडीशन थी ए साइन थीटा 2 इज इक्वल टू 2 लेमडा। तो थीटा 2 यानी इसकी पोजीशन दूसरे मिनिमा की मिल रही थी 2 लेमडा बाई ए। तो लेमडा बाई ए, फिर 2 लेमडा बाई ए पे दूसरा मिनिमा, फिर 3 लेमडा बाई ए पर तीसरा मिनिमा एंड सो ऑन। nth मिनिमा n लेमडा बाई ए पोजीशन पर मिलेगा स्क्रीन पे। तो अब हम इस ग्राफ को कैसे ड्रॉ करेंगे और इंटरफेरेंस ग्राफ से इसका कंपैरिजन कैसे करेंगे, ये लास्ट टॉपिक है हमारे डिफ्रैक्शन का। तो हमने एक्स एक्सिस पर पोजीशन और वाई एक्सिस पर इंटेंसिटी प्लॉट की, और मिनिमा की कंडीशंस को जो हमने डिराइव करा था उनकी हेल्प से पोजीशन को लेबल कर दिया। और जो फर्स्ट मिनिमा है, सेंट्रल मैक्सिमा जो है, फर्स्ट मैक्सिमा या सेंट्रल मैक्सिमा, उसमें सारी एनर्जी कॉन्सेंट्रेटेड होती है, और फिर बाकी मैक्सिमाज हमको बहुत छोटे दिखाने हैं, और जैसे जैसे हम ग्रेजुअली दूर जा रहे हैं सेंट्रल मैक्सिमा से तो ये मैक्सिमा की पीप को छोटा करते जाना है और इनकी विड्थ को भी कम करते जाना है। ठीक, अब क्या होता है, ये है जब एक स्लिट ओपन है और फिर हमने दोनों स्लिट ओपन कर दी तो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का इंटरफेरेंस पैटर्न मिलता है। तो कैसे एक्सप्लेन किया गया और कैसे उसको समझा गया कि जब हम दोनों स्लिट्स ओपन कर देते हैं तो एक्चुअली ये जो लाइट एनर्जी है ना मैक्सिमा वाली, ये खुद को फिर से रीडिस्ट्रीब्यूट करती है। यहाँ पर रीडिस्ट्रीब्यूशन हुआ और फिर से रीडिस्ट्रीब्यूशन हुआ, और ये जो पीक्स हैं इनकी इंटेंसिटी एक्चुअली इक्वल नहीं होती है, लेकिन ये जो डिफरेंस है ये इतना ग्रेजुअल डिक्रीज है कि हम डिटेक्ट नहीं कर पाते। तो हमको इंटरफेरेंस पैटर्न में ये ब्राइटनेस इक्वल नज़र आती है, लेकिन तुम देखो कि अपने को रीडिस्ट्रीब्यूट किया लाइट एनर्जी ने, और हमें इंटरफेरेंस पैटर्न दिया, तो डिफ्रैक्शन पैटर्न अवेलेबल था। डिफ्रैक्शन पैटर्न की इंटेंसिटी ने या एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व ने इंटरफेरेंस पैटर्न के एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन को डिसाइड किया, लेकिन इंटरफेरेंस पैटर्न डिफ्रैक्शन पैटर्न पर सुपर इम्पोज हो गया। तो डिफ्रैक्शन फिनोमिना इज ऑलवेज टेकिंग प्लेस
The thing is that when both the slits are open, interference pattern overlaps over diffraction pattern, and we get the it appears as if the thickness and the intensity of the bright fringes is almost equal throughout the pattern. पर एक्चुअली ये जो पार्ट है ये हमको इंटरफेरेंस पैटर्न में दिखता है, क्योंकि ये इंटेंसिटी बहुत वीक होती है। तो हमें इंटरफेरेंस पैटर्न में हमारा फोकस इस पार्ट पे रहता है जो कि सेंट्रल मैक्सिमा की एनर्जी खुद को रीडिस्ट्रीब्यूट करके प्रोड्यूस करती है। तो ये कंपैरिजन भी है इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन में। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिफ्रैक्शन के न्यूमेरिकल्स करेंगे और साथ में रीजनिंग के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे।